नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हमारी जो सीरीज चल रही है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, उसको आगे बढ़ाते हैं आज। आज का नया टॉपिक है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Digestion, absorption, and metabolism of proteins. Introduction. About 3/4 of the body solids are proteins. हमारी bodies में जो solid part है उसका 1/3 हिस्सा प्रोटीन का बना हुआ है. These include these include structural proteins, enzymes, nucleoproteins, proteins that transport oxygen, proteins of the muscle that cause muscle contraction, and many other types that perform specific intracellular and extracellular functions throughout the body. Proteins in diet. Foodstuffs containing high protein content are meat, fish, egg, milk. Proteins are also available in wheat, soya beans, oats, and various types of pulses. Proteins present in common foodstuffs are wheat, glutenin, wheat में आते हैं glutenin and gliadin which constitute gluten. In milk there is casein, lactalbumin, albumin, and myosin. In egg, there is albumin and vitelline. In meat, there is collagen, albumin, and myosin. These are the different names of the proteins found in these food ingredients. Dietary proteins are formed by the long chains of amino acids bound together by peptide linkages. Digestion of proteins. There is a different areas in our GI tract which has a different role to digest proteins. Like in mouth, enzymes responsible for the digestion of proteins are called proteolytic enzymes. In saliva, there is no proteolytic enzyme. Digestion of proteins does not occur in the mouth since saliva does not contain any proteolytic enzymes. While we have seen in the carbohydrates, there is a digestion of the carbohydrates started from the mouth due to the saliva which contains different enzymes. So the digestion of protein starts only in stomach. So there is only digestion is started from only from the stomach. You can see in the table there is a different type of enzymes, substrate and end product and juice and area. In mouth there is saliva, no proteolytic enzyme. Substrate means जो भी हमने खाना खाया वो किस तरीके का, polysaccharides and cooked starch. There is a substrate and end product is a disaccharides, dextrin and maltose. And in stomach, juice is gastric juice. It contains pepsin, enzyme pepsin, and it substrate proteins into the end product is proteoses, peptones, large polypeptides. In small intestine, there is a two type of juices, pancreatic juice and succus entericus. In pancreatic juice, there is a trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidases A and B. And in succus entericus, there is a dipeptidases, tripeptidases, and aminopeptidases. So different type of peptidases are available in the succus entericus, also found in the pancreatic juice. So trypsin and chymotrypsin substrate proteoses and peptones that is found from the stomach into the end product as dipeptides, tripeptides, and polypeptides. And carboxypeptidases A and B digest
dipeptides, tripeptides, and polypeptides into the amino acids. So this is the last form of the protein digestion, that is amino acid, that is absorbed in the blood. So ब्लड में हम जो भी खाते हैं उसमें से ब्लड में सिर्फ एमिनो एसिड जाएगा प्रोटीन में से, बाकी और कोई चीज अंदर जाती नहीं, वो डायरेक्टली एमिनो एसिड को लेता है। सकस एंट्रिकस में जो डाइपेप्टिडेजीज है वो डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ट्राइपेप्टिडेजीज ट्राइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और एमिनो पेप्टिडेजीज है वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके के इसका डाइजेशन होता है प्रोटीन का। और एंड प्रोडक्ट जो आखिर में हमारे पास जो इंटेस्टाइन में बचती है वो है एमिनो एसिड। In the stomach, pepsin is the only proteolytic enzyme in the gastric juice. Renin is also present in gastric juice, but it is absent in human. स्टमक में पेप्सिन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कई कई एनिमल्स में रेनिन भी होता है गैस्ट्रिक जूस में, लेकिन ह्यूमन में वो एब्सेंट होता है। Small intestine, most of the proteins are digested in the duodenum and jejunum by the proteolytic enzymes of the pancreatic juice and succus centricus. Final products of the protein digestion. Final products of the protein digestion are amino acids which are absorbed into the blood from intestine. Amino acids, the principal constituents of proteins are amino acids, 20 of which are present in the body proteins in significant quantities. जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है उसकी बात कर रहे हैं। द chemical formulas of these 20 amino acids demonstrating that they all have two features in common. Each amino acid has an acidic group COOH and a nitrogen atom attached to the molecule, usually represented by the amino acid NH2. तो सभी जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है उसमें उसमें ये कॉमन है दो चीजें। सबसे पहला एसिडिक ग्रुप उसमें होता है COOH, और उसके साथ NH2 होता है। तो ये कॉमन चीजें है सभी, कोई भी किसी भी एमिनो एसिड की हम बात करें तो उसमें। peptide linkages and peptide chains, the amino acids of proteins are aggregated into long chain by means of peptide linkages. The chemical nature of this linkage is demonstrated by the following reaction. ये जो आप reaction हम देख रहे हैं कि दो एमिनो एसिड है वो जुड़ जाते हैं किस तरीके से, और उसमें से H2O क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं रिएक्शन फॉर्मूला में। और COOH जहां पर होता है वहां से OH, और NH2 में से एक H निकल जाता है और वहां पर वो N के साथ CO जुड़ जाता है, और वहां पर बनता है एक कनेक्शन, लिंकेज बनती है। ये ऐसी लॉन्ग लिंकेजेस बन के एक प्रोटीन बनता है। बराबर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स की डिफरेंट फॉर्मूलाज है। ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलानाइन, सेरीन, सिस्टीन। एसेंशियल एमिनो एसिड्स थियोनिन, लाइसिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, aspartic acid, valine, glutamic acid, leucine, tryptophan, asparagine, glutamine, tyrosine, isoleucine, histidine. So these are the amino acids. These 20 amino acids are very important, and each and every cell of our body contains these amino acids. Our whole body contains these major amino acids. Note in this reaction that the nitrogen of the amino radical of one amino acid bonds with the carbon of carboxyl radical of the other amino acid, जैसे हमने फॉर्मूला में देखा वही बात उसको डिस्क्रिप्शन है। A hydrogen ion is released from the amino radical and a hydroxyl ion is released from the carboxyl radical. These two combine to form a molecule of water. After the peptide linkage has been formed,
amino radical and a carboxyl radical are still at opposite ends of the new longer molecule. Each of these radicals is capable of combining with additional amino acids to form a peptide chain. Some complicated protein molecules have many thousand amino acids combined by peptide linkages, and even the smallest protein molecule usually has more than 20 amino acids combined by peptide linkages. The average is about 400 amino acids. तो एक प्रोटीन की जो एवरेज एमिनो एसिड्स है वो है 400 एमिनो एसिड्स। चाहे छोटी लिंकेजेस, छोटी मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल हो या बड़े से बड़े मॉलिक्यूल हो प्रोटीन के, उन सब में प्रोटीन लिंकेजेस से ही वो एमिनो एसिड जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। जब भी जुड़ जाते हैं तब वो उसके आगे पीछे यही दो रेडिकल रहते हैं, कार्बोक्सिल एज वेल एज एमोनिया। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप फिगर में इस फॉर्मूला में देख सकते हैं कि ऊपर की साइड NH2 जुड़ने के बाद भी वो NH2 रेडिकल और COOH रेडिकल आखिर में ही रहते हैं। तो यही बात समझनी है। Other linkages in protein molecules. Some protein molecules are composed of several peptides chains rather than a single chain, and these chains are bound to one another by other linkages, often by hydrogen bonding between the CO and NH radicals of the peptides as follows. तो आप देख सकते हैं फिगर में जो नॉर्मल बॉन्डिंग होती है वो N के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर H के साथ वो बॉन्डिंग हो रही है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेजेस हुआ। जनरली कोई भी नॉर्मली प्रोटीन जो लिंकेजेस बनते हैं एमिनो एसिड के बीच में प्रोटीन में, वो N के साथ जुड़ा हुआ रहता है, O के साथ N जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर O के साथ H जुड़ रहा है, तो एक अदर लिंकेजेस बना। Many peptide chains are coiled or folded, and successive coils or fold are held in a tight spiral or in other shapes by similar hydrogen bonding and other forces. जब भी कोई ऐसी बड़ी श्रृंखला वाला कोई प्रोटीन होता है तो फिर वो कोइल्ड हो जाता है, फोल्डेड लिंकेजेस हो जाते हैं, और उसमें उस फोल्डिंग को रखने के लिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है और दूसरे अदर फोर्सेस उसको फोल्डिंग में रखते हैं। Absorption of proteins. Proteins are absorbed in the form of amino acids from small intestine. Small intestine में amino acid के रूप में ही वो absorb होता है। The LEVO amino acids are actively absorbed by means of sodium cotransport, whereas the dextro amino acids are absorbed by means of facilitated diffusion. Absorption of amino acids is faster in duodenum and jejunum and slower in ileum. Metabolism of proteins. तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म स्मॉल इंटेस्टाइन में से वो एमिनो एसिड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, फिर वहां सिस्टमिक सर्कुलेशन से वो लीवर में, किडनीज में, टिश्यूज में, अदर सेल्स में भी चला जाता है। और बाकी का जो ज्यादा बचता है, जो एमिनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वो एमोनिया बन के एक्सक्रीट हो जाता है। तो जिन लोगों को गैस की तकलीफ है और ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस होता है, यानी कि उनके अंदर एमोनिया ज्यादा, यानी कि अगर उन लोगों की प्रोटीन डाइट कम करवा दे तो उनको ये गैस की समस्या कम हो सकती है। और कुछ एमिनो एसिड्स हिपेटिक पोर्टल वेन के जरिए डायरेक्ट लीवर में जाता है या फिर सर्कुलेशन से लीवर में जाता है। तो और वहां पर उसकी या तो ग्लूकोनियोजिनेसिस होगी या फिर उसका प्लाज्मा प्रोटीन बनेगा, और उसके उसको जो भी प्रोसेसेस लीवर में होती है उससे यूरिया एंड एमोनिया क्रिएट होता है, जो किडनीज में से या फिर इंटेस्टाइन में से बाहर निकलेगा। और जो टिश्यूज में जो एमिनो एसिड जाता है वहां पर ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इसको यूज होता है। एनर्जी, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब बनाने में भी प्रोटीन का यूज होता है। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ एमिनो एसिड।
blood amino acids. Normal concentration of amino acids in the blood is between 35 to 65 mg per dl. This is an average of about 2 mg per dl for each of the 20 amino acids, although some are present in far greater amounts than others. Because the amino acids are relatively strong acids, they exist in the blood principally in the ionized state, resulting from the removal of one hydrogen atom from the NH2 radical. They actually account for 2 to 3 milliequivalents of the negative ions in the blood. The precise distribution of the different amino acids in the blood depends to some extent on the types of protein eaten, but the concentration of least some individual amino acids are regulated by selective synthesis in the different cells. तो जिन लोगों को ये फ्लैचुलेंस की दिक्कत है उन लोगों को ये एमिनो एसिड वाले खुराक बंद कर देने चाहिए, यानी कि जैसे अगर गुजराती लोग काफी गेहूं खाते हैं, व्हीट खाते हैं जिसमें ग्लूटेन आता है, तो उन लोगों को अगर हम ग्लूटेन फ्री डाइट दे तो फिर उनको ये काफी सारा राहत मिल सकती है। फैट ऑफ एमिनो एसिड्स एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। The products of protein digestion and absorption in the GI tract are almost entirely amino acids. Only rarely are polypeptides or wall protein molecules absorbed from the digestive tract into the blood soon after a meal. The amino acid concentration in a person's blood rises, but the increase is usually only a few milligrams per deciliter for two reasons. First, protein digestion and absorption are usually extended over 2 to 3 hours, which allows only small quantities of amino acids to be absorbed at a time. तो जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वो एमिनो एसिड का क्या होता है, वही बात हम समझ रहे हैं कि जो भी प्रोटीन डाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स है और जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो एंटायरली एमिनो एसिड होता है। Only rarely polypeptides or wall protein molecules absorb from the digestive tract into the blood. भाग्य ही ऐसा होता है कि पॉलीपेप्टाइड या पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाए जीआई ट्रैक्ट से ब्लड में चले जाए। Soon after a meal, खाने के बाद तुरंत एमिनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन अ पर्सन्स ब्लड राइजेस, तुरंत वो जो ब्लड में एमिनो एसिड है वो तुरंत बढ़ने लगता है, but the increase is usually only a few milligrams per deciliter. लेकिन ये जो बढ़ता है एमिनो एसिड की मात्रा जो खून में बढ़ जाती है वो काफी उतनी ज्यादा नहीं होती जितना हम उसको समझते हैं कि ये बढ़ जाती है, यानी कि सबके दिमाग में यही आता है कि बहुत ज्यादा बढ़ती होगी, लेकिन वो उतना नहीं है, फ्यू मिलीग्राम से बढ़ती है। उसके दो रीजन है। सबसे पहला, प्रोटीन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कब होती है ज्यादातर, जब वो स्टमक से ड्यूओडेनम में जाए तब वो ज्यादातर वो कंप्लीट होता है, तो उसको 2 से 3 घंटा लगता है, विच अलाउस ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अमीनो एसिड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड एट अ टाइम, और उस समय काफी कम क्वांटिटी में वो एब्जॉर्ब हो सकता है। तो तुरंत नहीं, लेकिन काफी टाइम के बाद अगर किसी को फ्लैचुलेंस की दिक्कत आए तो उन लोगों को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ग्लूटेन फ्री डाइट देना चाहिए, प्रोटीन कम वाला डाइट देना चाहिए। सेकंड, आफ्टर एंटरिंग द ब्लड, द एक्सेस एमिनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड within 5 to 10 times by cells throughout the body, especially by the liver. एक बार ब्लड में आ जाए, पहला तो हमने समझा कि ब्लड में कैसे जाता है, कितना जाता है और कितने आवर्स में जाता है। अब जब ये ब्लड में चला जाए उसके बाद क्या होता है, द एक्सेस एमिनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड विद इन 5 to 10 मिनट्स बाय सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली बाय द लीवर। ज्यादा मात्रा में जो एमिनो एसिड आ गया है, बढ़ गया, ब्लड की जो लेवल है एमिनो एसिड की वो बढ़ गई,
तो उसके बाद जो बढ़ा हुआ है वो बॉडी के सेल द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, या फिर ज्यादातर वो लीवर में जाता है, लीवर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। Therefore, almost never do large concentrations of amino acids accumulate in the blood and tissue fluids. Tissue fluids. इसीलिए ज्यादा मात्रा में एमिनो एसिड बढ़ता नहीं है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में। Nevertheless, the turnover rate of the amino acids is so rapid that many grams of proteins can be carried from one part to the body to another in the form of amino acids each hour. हर घंटे में इसकी जो एमिनो एसिड की जो टर्नओवर रेट है वो काफी रैपिड है, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की ट्रांसफर होती रहती है। हर घंटे में काफी ज्यादा मात्रा में एमिनो एसिड ट्रांसफर होता है एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स इनटू द cells. The molecules of all the amino acids are much too large to diffuse readily throughout the pores of the cell membranes. Therefore, significant quantities of amino acids can move either inward or outward through the membranes only by facilitated transport or active transport using carrier mechanism. तो जो प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्टेशन वो चाहे वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से हो सकती है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है, उससे काफी ज्यादा मात्रा में ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से वो चले जाते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ द एमिनो एसिड्स, यानी कि कब ये एमिनो एसिड रीनल में से किडनीज में से बाहर निकलते हैं। इन द किडनीज डिफरेंट एमिनो एसिड्स कैन बी एक्टिवली एब्जॉर्ब थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियम। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है उसमें से एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो ही जाता है different amino acids, which removes them from the glomerular filtrate and returns them to the blood if they should filter into the renal tubules through the glomerular membranes. कि अगर वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के फिल्टर में से अगर रीनल ट्यूब्यूल में आ जाए तो फिर उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम, उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेते क्योंकि ये सब किसके बने हैं, गट ट्यूब्स के सेल से ही ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम बना हुआ है, तो ये वापस उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। However, as is true of other active transport mechanisms in the renal tubules, there is an upper limit to the rate at which each type of amino acid can be transported. For this reason, when the concentration of a particular type of amino acids becomes too high in the plasma and glomerular filtrate, the excess that cannot be actively reabsorbed is lost into the urine. जब भी रीनल ट्यूब्यूल में उसकी रेट जो एमिनो एसिड की रीएब्जॉर्प्शन की जो रेट है उससे ज्यादा एमिनो एसिड जब रीनल ट्यूब्यूल्स में आने लगे तो फिर वो जो ज्यादा एमिनो एसिड है वो यूरिन में लॉस्ट होता रहेगा। तो जब भी यूरिन में प्रोटीन आता है, जब भी कोई हम यूरिन रूटीन माइक्रो करवाते हैं और उसमें प्रोटीन आता है तो उसका मतलब ये है कि रीनल में जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है या तो वो गड़बड़ है या फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उससे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ रहा है। तो अब ये फिल्ट्रेट में से बाहर निकल रहा है रीनल ट्यूब्यूल में और उसकी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कम है तो जो बचा रहेगा वो यूरिन में आता रहेगा। तो इसको इसीलिए जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया होता है तो उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि उसके जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के जो सेल है उसके पोर्स बड़े हो गए और उसकी वजह से ज्यादा एमिनो एसिड उसमें से डिफ्यूजन होके अंदर जा रहा है फिल्ट्रेट में, रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है और उसकी जो
प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम है, उसकी जो रीएब्जॉर्प्शन करने की ताकत है उससे ज्यादा मात्रा में एमिनो एसिड आ रहा है, जिसकी वजह से हमें रिपोर्टिंग में दिख रहा है, हमें पता चलता है कि भाई प्रोटीन जा रहा है यूरिन में। इसका हमें जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं फिजियोलॉजी में, तब इसका एक टेस्ट भी हमें लैब में करवाते हैं कि भाई कोई भी वाटर में अगर एल्ब्यूमिन है तो उसको कैसे हम जज कर सकते हैं। तो उसकी एक प्रैक्टिकल पार्ट भी हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है BHMS के। स्टोरेज ऑफ एमिनो एसिड्स as proteins in the cells almost immediately after entry into the tissue cells. Into the tissue cells, amino acids combine with one another by peptide linkages under the direction of the cell's messenger RNA and ribosomal system to form cellular proteins. तो अब सेल के अंदर प्रोटीन का स्टोरेज कैसे होता है, यानी कि एमिनो एसिड कैसे प्रोटीन बन के वो स्टोर हो जाता है। जैसे ही वो टिश्यू सेल्स में एंटर हो जाता है बाय द डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एमिनो एसिड्स कंबाइन विथ वन अनदर बाय पेप्टाइड लिंकेजेस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेल्स मैसेंजर mRNA एंड रिबोसोमल सिस्टम के जरिए वो रिबोसोमल सिस्टम क्या करते हैं, एक एमिनो एसिड्स और दूसरे एमिनो एसिड को लिंकेज करवाता है टू फॉर्म सेल्यूलर प्रोटीन्स। इसको हम आगे एक वीडियो से समझेंगे कि भाई कैसे ये लिंक बनती है। देयरफॉर तो ये वीडियो में हमें ये समझेंगे कि कैसे एमिनो एसिड जुड़ते हैं सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए के थ्रू रिबोसोमल सिस्टम में जुड़ के वो कैसे ये बनता है, ये हम अभी देखेंगे। तो ये रहा वीडियो। DNA टू प्रोटीन, कैसे प्रोटीन बनता है सेल के अंदर, वो हम इस वीडियो से सीखेंगे। हर एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स के बीच न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में जीनोम होते हैं और ये जीनोम 23 पेज ऑफ क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। हर एक क्रोमोसोम में हिस्टोन की मदद से DNA कॉम्पैक्ट सिचुएशन में रहता है और ये DNA हमारे प्रोटीन को जीन रखता है जो प्रोटीन को सिग्नल करता है। RNA पॉलीमरेज इस DNA के साथ जुड़ जाता है और ये DNA की श्रृंखला को डिकोड करता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से RNA पॉलीमरेज इस DNA को डिकोड करके एक अलग श्रृंखला बनाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में ये जो श्रृंखला नहीं बनती है वो वापस अलग होके वहां से छूट जाती है और इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए सिग्नल दे उससे पहले इसमें टूटते हैं और नए जुड़ाव होते हैं। इस तरीके की कंडीशन बनती है, जैसा जरूरी होता है उस तरीके से, और ये फिर मूव करके सेल न्यूक्लियस से बाहर निकलते सेल साइटोप्लाज्म में आ जाते। सेल साइटोप्लाज्म में आके वो रिबोसोम के साथ जुड़ जाता है। रिबोसोम इसको रीड करता है। रिबोसोम में एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, आप देख सकते हैं वीडियो में, ट्रांसफर आरएनए के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ के उस सिग्नल को डिकोड करता है जो मैसेंजर आरएनए लेके आया है, और इस तरीके से वो एमिनो एसिड उससे जुड़ता रहता है
और एमिनो एसिड जब ऐसे जुड़ता है तो वो लंबी श्रृंखला बनता है, और जब ये आखिरी एमिनो एसिड उसके साथ जुड़ जाता है तो ये वहां से निकल के ऐसे टाइटली पैक होके एक प्रोटीन बना देता है। Therefore, the concentration of free amino acids inside the cells usually remains low. इसीलिए जो फ्री एमिनो एसिड, जैसे हम सब ने देखा वीडियो में कि कैसे सेल में एमिनो एसिड जाते ही वो प्रोटीन बनने लगते, बिकॉज ऑफ देयर इज अ मैसेंजर आरएनए एंड रिबोसोमल सिस्टम के जरिए। तो उसमें जो सेल में फ्री एमिनो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन काफी लो रहता है। द स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्री एमिनो एसिड्स डज नॉट अकर इन द सेल्स, इंस्टेड दे आर स्टोर्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोटीन्स, but many of these intracellular proteins can be rapidly decomposed again into the amino acids under the influence of intracellular lysosomal digestive enzymes. तो लेकिन लेकिन इंट्रासेल्युलर प्रोटीन रैपिडली डिकम्पोज हो सकते हैं, एमिनो एसिड में वापस वो परिवर्तित हो सकते हैं ड्यू टू द लाइसोसोमल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। These amino acids can then be transported back out of the cell into the blood. ये जो प्रोटीन जो स्टोरेज है उसमें से वापस एमिनो एसिड बन के वो वापस ब्लड में आ जाते हैं जब भी जरूरत होगी तब। Special exceptions to this reversal process are proteins in the chromosomes of the nucleus and the structural proteins such as collagen and muscle contractile proteins. लेकिन जो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जो प्रोटीन, कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, यानी कि वो एमिनो एसिड में तब्दील नहीं हो सकते। तो ऐसे कौन से प्रोटीन है? तो वो है क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ है। उसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन रिवर्सिबल नहीं है। एंड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन सच एज कोलेजन, मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी मसल में जो इलास्टिन है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, तो वो कभी रिवर्स प्रोसेस में नहीं जाता। These proteins do not participate significantly in these reverse digestion and transport back out of the cells. ये इस रिवर्स डाइजेशन की प्रोसेस में वो भाग नहीं लेते हैं और सेल के बाहर से उस प्रोटीन को बाहर नहीं निकालते, एमिनो एसिड को बाहर नहीं निकालते। Some tissues of the body participate in the storage of amino acids to a greater extent than others. कुछ टिश्यूज है वो ज्यादा मात्रा में एमिनो एसिड को स्टोर करता है। For instance, the liver, which is a large organ and has special systems for processing amino acids, can store large quantities of rapidly exchangeable proteins. This is also true to a lesser extent of the kidneys and the intestinal mucosa. एज फॉर एग्जाम्पल लीवर भी एक बड़ा ऑर्गन है और उसके अंदर काफी स्पेशल सिस्टम है एमिनो एसिड को प्रोसेस करने की, और वो काफी ज्यादा मात्रा में और रैपिडली वो प्रोटीन को एक्सचेंज कर सकता है, इसीलिए वहां पर ज्यादा मात्रा में ये प्रोटीन है वो स्टोर होता है। और किडनीज और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में वो काफी कम उसकी एक्सटेंट है प्रोटीन को स्टोर करने की। Release of amino acids from the cells as a means of regulating amino acid concentration, plasma amino acid concentration. ये जो एमिनो एसिड सेल में से रिलीज होता है वो क्यों होता है? ताकि प्लाज्मा एमिनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेशन हो सके, यानी कि जब भी कम हो जाएगा प्लाज्मा एमिनो एसिड तब सेल में से सेल के प्रोटीन में से एमिनो एसिड बन के वो बाहर आते रहेंगे। Whenever plasma amino acid concentrations fall below normal levels, the required amino acids are transported out of the cells to replenish their supply in the plasma. In this way, the plasma concentration of each type of amino acid is maintained at a reasonably constant value. Later, it is noted that some of the hormones secreted
by the endocrine glands are able to alter the balance between tissue proteins and circulating amino acids. For instance, growth hormone and insulin increase the formation of tissue proteins, whereas adrenocortical glucocorticoid hormones increase the concentration of plasma amino acids. तो उसमें अलग अलग हार्मोन का भी रोल आ जाता है एंडोक्राइनल ग्लैंड में से जो सिक्रीट होता है बैलेंस टिश्यू प्रोटीन एज वेल एज सर्कुलेटिंग एमिनो एसिड को बैलेंस करने के लिए हार्मोन से अलग अलग एज फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन टिश्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, जबकि एड्रेनोकॉर्टिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो फाइट एंड फ्लाइट में आता है, वो सर्कुलेटिंग एमिनो एसिड को बढ़ाता है ताकि फाइट और फ्लाइट में स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हमें हमें वर्क करने के लिए ये प्रोटीन, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर लॉस भी होगा तो उसको वापस मेंटेन करने के लिए एमिनो एमिनो एसिड चाहिए। तो ये इसीलिए ये सब एक साथ में इकट्ठा काम कर रहा है पूरी बॉडी। इसको और गहराई से समझना हो तो आपको हमारे आगे के वीडियोस जो न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस पे हमने बनाया उसको आपको सुनना पड़ेगा। उसमें काफी सारी चीजें हमने समझाई हुई। Reversible equilibrium between the proteins in different parts of the body. Because cellular proteins in the liver and to a less extent, much less extent in other tissues, can be synthesized rapidly from plasma proteins, plasma amino acids, and because many of these proteins can be degraded and returned to the plasma almost as rapidly, there is constant interchange and equilibrium between the plasma amino acids and labile proteins in virtually all cells of the body. For instance, if any particular tissue requires proteins, it can synthesize new proteins from the amino acids of the blood. In turn, the blood amino acids are replenished by the degradation of proteins from other cells of the body. तो ये सबकी एक दूसरे के साथ तालमेल हो रही है। किसी एक पार्ट को कोई नए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो ब्लड के एमिनो एसिड से वो एमिनो एसिड लेके नया प्रोटीन बना लेगा, लेकिन और उसको रिप्लेनिश करेगा दूसरे सेल में जो प्रोटीन स्टोरेज है उसमें से एमिनो एसिड बाहर आ जाएगा बन के। तो ये प्रोसेस एक दूसरे के तालमेल के साथ होती रहेगी। स्पेशली फ्रॉम द लीवर सेल्स, तो लीवर सेल्स में से ये ज्यादातर डिग्रेडेशन होता रहेगा प्रोटीन का। These effects are particularly noticeable in relation to protein synthesis in cancer cells. Cancer cells are often prolific users of amino acids. कैंसर सेल्स में काफी प्रोटीन जाता रहता है तो उनको काफी इन लोगों को काफी प्रोटीन की जरूरत रहती है। Therefore, the proteins of the other cells can become markedly depleted. इसीलिए दूसरे सेल्स में से प्रोटीन काफी कम हो जाएगा और इसीलिए कैंसर सेल्स के कैंसर वाले जो पेशेंट है उनमें हम सबको मिलता है एक्सट्रीम वेट लॉस, क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है, अंदर के जो प्रोटीन स्टोरेज है वो खाली हो रहे, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स भी खाली होना लगेगा। तो ऐसे ऐसे हमारी बॉडी ये इकट्ठी काम कर रही है। जब भी ऐसा कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तब उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमारी जो बॉडी की जो स्टोरेज है वो यूज होती है। Upper limit for the storage of proteins. Each particular type of cell has an upper limit with regard to the amount of proteins it can store. हर एक की लिमिट होती है भाई, हर एक का सेल कितना स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशन। After all the cells have reached their limits, the excess amino acids still in the circulation are degraded into other products and used for energy as discussed subsequently, or they are converted to fat or glycogen and stored in these forms. अगर उनकी लिमिटेशन से बाहर एमिनो एसिड सर्कुलेशन में हो
तो फिर वो सर्कुलेशन को दूसरे प्रोडक्ट में डिग्रेड किया जाएगा, वो जो एमिनो एसिड है उसको दूसरे प्रोडक्ट में डिग्रेड कर दिया जाएगा, जैसे कि फैट या फिर ग्लाइकोजन के स्वरूप में उसको बॉडी में स्टोर कर दिया जाएगा। Functional roles of plasma proteins. The major types of protein present in the plasma are albumin, globulin, and fibrinogen. A major function of albumin is to provide colloid osmotic pressure in the plasma, which prevents plasma loss from the capillaries. The globulins perform a number of enzymatic functions in the plasma, but equally important, they are principally responsible for body's both natural and acquired immunity against invading organisms. तो ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन है जिसमें मेनली अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन है। उनके फंक्शन जानने से हमें पता चलेगा कि जब भी इसका कोई हमें डिजीज मिलता है तो हमें उस तरीके की थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए, स्पेशली फॉर होम्योपैथ्स। A major function of albumin is to provide colloid osmotic pressure in the plasma, which prevents plasma loss from the capillaries. Capillaries में से वो plasma loss prevent करता है albumin, तो वो ऑन्कोटिक प्रेशर को बरकरार रखता है। जब भी एल्ब्यूमिन लो हो जाएगा तो प्लाज्मा लॉस होना चालू हो सकता है, यानी कि ईडीमा आता है। हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस देखे होंगे सबने, तो उनमें हम देखते हैं कि उनमें इडीमा आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन फ्रॉम द कैपिलरीज। जब भी कैपिलरीज में से एल्ब्यूमिन कम होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया होगा, तब तब ये प्लाज्मा लॉस हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा कैपिलरीज से बाहर निकलने लगेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में, जिसकी वजह से वहां पर इडीमा डेवलप होना हमें दिखेगा। दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स परफॉर्म अ नंबर ऑफ एंजाइमेटिक फंक्शंस इन द प्लाज्मा, बट इक्वली इंपॉर्टेंट। अलग अलग फंक्शन में काम करता है। Equally important, they are principally responsible for the body's both natural and acquired immunity. तो जब भी ग्लोबुलिन, यानी कि हमारे हमारे सामने जब भी इम्यूनिटी की बात आती है तब हमारे पास आ जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन, यानी कि ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काफी स्पेशलाइज्ड हुआ है। तो हमारी नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जैसे हम वैक्सीन लेते हैं तो उससे जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्रिएट होते हैं वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि हमारी बॉडी में नेचुरली जो प्रोड्यूस हुए हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, दे आर नेचुरल इम्यूनिटी। तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल है। काफी सारे एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए ग्लोबुलिन का रोल होता है, लेकिन ये स्पेशल रोल है इम्यूनिटी में। Fibrinogen polymerizes into long fibrin threads during blood coagulation, thereby forming blood clots that help repair leaks in the circulating system. फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है, ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड ब्लड कोएगुलेशन में काम करता है। वो लॉन्ग थ्रेड में तब्दील हो जाता है, ट्रांसफर पॉलीमराइज हो जाता है और रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में लीक हुई है, यानी कि कहाँ, अब ये जो लीकेज है वो लीकेज लिटरल भी हो सकता है या फिर फिगरेटिव सेंस में भी हो सकता है। फिगरेटिव सेंस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है कि बॉडी को सब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, सब कुछ सप्लाई करता है। तो ये जो जब सप्लाई फिगरेटिवली, जब वो मेंटल लेवल पे जब वो प्रॉब्लम आने लगे कि सप्लाई में कमी आने लगे, कम महसूस होना लगे, या उस सप्लाई में से लीकेज होने लगे, यानी कि कोई ले जा रहा है, तो वो वहां पर फिगरेटिव सेंस में लीकेज है। उस उस समय, उस कंडीशंस में हमारी बॉडी उसको रिपेयर करने लगेगी, यानी कि बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगेगा। तो जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी लीकेजेस आने लगे तो उसका मतलब ये है
कि हमारी वो लिटरल सेंस भी हो सकती है और फिगरेटिव सेंस भी हो सकती है। लिटरल सेंस में तो कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक हीलिंग का पार्ट है, रिपेयरिंग प्रोसेस का पार्ट है, वो आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजिएंट है। जैसे हनुमान सर लोकल डिजीज के एफोरिज्म से उसमें हमें समझाते। लेकिन जब वो लोकल प्रॉब्लम की वजह से बुखार आने लगे, पेन होने लगे, किसी और ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी प्रॉब्लम है, इंटरनल कोई बात है जो असर कर रही, यानी कि वो सोरे की बात कर। तो आज के लिए हम यहाँ पर इस सेशन को स्थगित करते हैं। कल फिर से आगे के पार्ट को लेके आएंगे।